تشریف لائیں، اپنے تاثرات سے بھائیوں کو آگاہ کریں۔ ادھر تشریف نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ انسان کا جسم کیا ہے جس پہ نازا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا ہے اس میں گارا اور اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت دے عظیم سپہ سلار جو کہ اللہ نو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا شمشاد سلفی صاحب رحمہ اللہ انہاں دی زندگی دی محنت کوشش کاوش جو مسلک واسطے انہاں کیتی ہے، ہر پنڈ ہر قصبے دے اندر جا کے مسلک دے پرچار نو ہی انہاں اجاگر کیتا ہے اور مسلک دی ہی ترجمانی کیتی ہے۔ تو انہاں دی پوری زندگی جیڑی ہے وہ مسلک واسطے وقف سی۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا مسلک واسطے کم کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ مینوں بڑی اچھی طرح یاد ہے، رتا جٹھول پنڈ ہے تحصیل پسرور دے اندر میرا آبائی قصبہ ہے۔ میں چھوٹا ہونا سا، قرآن حفظ کرنا سا، تے اوتھے ماسٹر امین اوکاڑوی تے حضرت مولانا شمشاد سلفی صاحب دا مناظرہ ہویا ساڈے پنڈ۔ بہرحال وہ دیوبندی جڑے نے وہ نس گئے، انہاں دا نام سن کے ہی ماسٹر امین اوکاڑوی آیا نہ بلکہ الٹا پولیس والے نہ بھیج دیتا، تے سلفی صاحب فرمان لگے بھی پولیس والے بھئی انہوں ضرورت نہیں اجے، پہلو انہوں لیاؤ میرے سامنے۔ تو اس طرح مسلک واسطے کام کرنے والے انسان جڑے نے بہت کم ہوندے نے، جڑے اپنی تقریر دے اندر اپنی تحریر دے اندر مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو واضح کرن۔ اور انہاں ستاریاں دے وچوں ایک تارا حضرت مولانا شمشاد سلفی رحمہ اللہ سن۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی آخرت بہتر فرمائے۔ اور ایک عربی دا شعر والدت کا امو کا یبن آدم باقیہ والناس حولک یضحکون سرورا۔ اے ابن آدم جدو تیری ماں نے تینوں جنم دیتا تو رو رہا سا، جہان ہس رہا سی۔ فرمایا لوگ مبارکاں دے رہے سن، اللہ نے تینوں پوتا دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، نواسا دیتا ہے۔ فَعَمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا۔ بس عمل سیرت کردار ایویں دا پیدا کر جاؤ کہ تھوڑے جان تو بعد تھوانو گلیاں دے ککھ بھی رون ایتھوں دی محمد دا غلام ننگیا سی۔ اور تو اللہ دے دربار دے اندر اپنے عملہ دی وجہ تو ہسدا ہوئے۔ میرے بھائیو، کوئی ایسی اکھ نہیں جڑی مولانا شمشاد سلفی رحمہ اللہ دے غم دے اندر اشکبار نہیں، اور کوئی ایسے لوگ نہیں جنہاں نو یہ صدمہ نہیں پہنچیا۔ میں تے یقیناً کہاں گا کہ مولانا شمشاد سلفی رحمہ اللہ ایک ریڑھ دی ہڈی سن۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا سی وقت دے بادشاہ نو تیری میری اہمیت دا پتہ ادن لگے گا جدن جنازے اٹھن گے۔ تے وقت دے بادشاہ دی چارپائی چوک چ پئی ہے، کوئی کندھا دین والا نہیں، لیکن جدو امام احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھیا 20 تو 25,000 یہودی عیسائی جنازہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے نے جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے، آواز آئی اینوں تے معاف کر چھڑیا جنہ دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑے۔ تو میرے بھائیوں، کچھ جنازے ہوندے نے جنازہ پڑھن والے جنازے دی وجہ تو بخشے جاندے نے، کچھ جنازے ہوندے نے جنازہ پڑھن والیاں دی وجہ تو جنازہ بخشیا جاندا ہے۔ تو سارے ساتھی تشریف لائیو، میں گزارش کراں گا کہ اگر زندگی دے اندر کوئی 100 اونچ نیچ انسان کو ہو جاندی ہے، اللہ دی رضا دی خاطر معاف کرنی چاہیے، اور درد دل نہ سارے ساتھی حضرت سلفی صاحب واسطے دعا کرو، اللہ عمل دی توفیق۔ جس طرح وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ اس وقت جنازہ میں مجھے سب سے زیادہ تعداد علماء کرام کی نظر آ رہی ہے، داعیان اعظام کی اور سنت کے شاعرین۔ تو اللہ تبارک و تعالی
हमारे बुज़ुर्गों को करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमाए। आमीन। जैसे मौलाना शेखुल हदीस मौलाना इलियास असरी साहब फरमा रहे थे कि वो बहुत मेज़बान थे, ये उनका अंदाज़े मेज़बानी हमने भी बड़ा अरसा अपनी आँखों से भी देखा है, तजर्बा भी किया है। उनमें अल्लाह तबारक तआला ने बड़ी खूबियाँ रखी हुई थी। एक बहुत बड़ी खूबी, जब भी हम उनका शेड्यूल बनाते तो कहते कि मेरा शेड्यूल उस इलाके में बनाना जहाँ उलमा मौजूद हों, इसलिए कि मैंने सिर्फ तकरीर नहीं करनी, मैंने उलमा से मुलाकातें भी करनी हैं। इख्तलाफ अपनी जगह और मौक़िफ़ अलग अलग अपनी जगह, लेकिन इल्म और उलमा के साथ जो उनका बैठना, मिलना और ताल्लुक़ रखना, राब्ता रखना, गमी खुशी में शरीक होना, ये बहुत हम इस दौर में जो मादा परस्ती का दौर है, इस दौर में ये खूबी मुसलसल कम से कम तर हो रही है। लेकिन सल्फ़ी साहब रहमहुल्लाह को देखा कि वो माशाअल्लाह ये आखिरी दम तक ये खूबी उनमें बदरजाए कमाल रही है। दावत का शौक़ ये आखिरी महीनों में और अरसे में उनकी गुफ्तगू की बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती थी, यानी बड़ी उम्र की वजह से, आज़ा के कमज़ोर होने की वजह से। लेकिन जब भी मिलना है, हमसे बहस करनी है कि तुम मेरे प्रोग्राम नहीं रखते, मेरे हर रोज़ प्रोग्राम रखा करो, एक रखो, दो रखो, मैं 5-5 प्रोग्राम एक दिन में करना चाहता हूँ, मैं लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। वल्लाही ये खूबियाँ, ये बहुत शानदार खूबियाँ, बहुत ज़बरदस्त खूबियाँ। और बाकी बातें तो उलमाए किराम ने कर ली हैं। एक जुमला, सल्फ़ी साहब तो आज चले गए, अल्लाह के दरबार में पहुँच गए। हाफिज तलहा सईद साहब से गुजारिश करूंगा वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने तासुरात से भाइयों को आगाह करें। तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अव्वल के चेयरमैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, मौलाना शमशाद सल्फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें गुज़श्ता 20 साल कबल तक़वियत दी और वो हमारे साथ मिले, और उनके मिलने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम में, हमारे मामलात में बहुत बेहतरी आई। बहुत सी बातें हो चुकी हैं, बस मैं उनकी एक बात आपको बताकर अपनी बात को ख़त्म करूंगा, और मैं ये चाहता हूँ कि इसके बाद सिलसिला ख़त्म किया जाए और हम जनाजा पढ़ें। मोहतरम भाइयों, मौलाना शमशाद सल्फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह की शख्सियत के बहुत सारे महासिन यहाँ पर बयान हुए हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब भी वो मुझे मिलते तो बहुत ही ज़्यादा नसीहतें करते, और जब से हमारे बुज़ुर्गों पर और हमारी जमात पर यह आजमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो वो कितना वक़्त साथ बैठकर हमें हौसला देते और बड़ी बड़ी ऐसी बातें बताते, तारीख़ से वाक़यात सुनाते, और वो ज़ाती तौर पर ये कहते कि मुझे यकीन है कि ये जमात अल्लाह ताला इसको बहुत आगे बढ़ाएगा, इसको सुरखरू फरमाएगा, इसके ख़िलाफ़ होने वाली मुल्की या बैनुल अक़वामी साजिशों को अल्लाह ताला ख़त्म करेगा। आप हाफ़िज़ साहब देखिएगा, एक वक़्त आएगा कि इस पूरे मुल्क की हुक्मरान जमात आपकी बनेगी। ये शमशाद सल्फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह, ये उनकी शख्सियत के वो पहलू मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ आज बहुत से लोग उनके मुताल्लिक़ ऐसी बातें भी करते पाए गए, तो उनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। जब मेरी दावत व इस्लाह की ज़िम्मेदारी लगी तो मैं ये समझता हूँ कि उनके मुताल्लिक़ तनकीद करने वाले लोग सही मालूमात, दुरुस्त मालूमात नहीं रखते हैं। क़िबला अव्वल के हिफाजत और दिफा पर तहरीक चलाने का मौका आया तो उन्होंने ये नाम तजवीज़ किया कि तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अव्वल पर तहरीक बनाई जाए। तो हमने उनके दिए हुए नाम की तहरीक बनाई और उनको ज़िम्मेदार बनाया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अव्वल। और मौलाना शमशाद सल्फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने उस तहरीक के ज़ेर एहतमाम पूरे मुल्क में बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम किए।
اللہ ताला उनकी खिदमात को कबूल व मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह मुझे ये ईमान है कि जो वो बातें कर गए अल्लाह ताला सुरखरू फरमाएगा। एक वक्त अल्लाह ये लाने वाला है और वो करीब है कि ये सारी साजिशें, रुकावटें अल्लाह अपनी जनाब से ख़त्म फरमाएगा और उनके साथियों को अल्लाह ताला इस मुल्क में ये गलबे अता फरमाएगा। तो तमाम भाई अपनी सफ़ों को दुरुस्त कीजिए, इंशाअल्लाह भी हम जनाजा पढ़ेंगे। दावत दूंगा वो अपने तासुरात से भाइयों को आगाह करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी उम्र इस वक्त 64 साल है और मौलाना शमशाद सल्फ़ी साहब की उम्र कोई 84 साल के करीब थी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी मेरी उम्र है इतना टाइम उन्होंने अल्लाह के दीन का काम किया है। तो वो हम सब के बुज़ुर्ग थे, बड़े थे। मैं सिर्फ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन जिस बंदे की ये लंबी उम्र और अल्लाह के दीन का काम और ये सफ़ेद बाल, तो ये जो सफ़ेद बाल हैं, ये जो लंबी उम्र है, ये क़यामत के दिन उसके लिए नूर बन जाएगी। यौम तरल मोमिनीन यस्आ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। उसके आगे और दाएं अल्लाह का नूर जो है वो लाइटें बनकर रहनुमाई कर रहा होगा। तो मेरे भाइयों, हम दुआ करते हैं, हर इंसान के अंदर खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी खामियों से दरगुजर फरमाए, उनकी खूबियों और हसनात को कबूल फरमा कर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ भाइयों, ये दुनिया हमारी असल मंजिल नहीं है। हम यहाँ पर सब के सब मुसाफिर हैं। हमारी मंजिल वो आगे वाला घर है और उस आगे वाले घर की तैयारी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये दुनिया की ज़िंदगी बख्शी हुई है। यकीनन मोहतरम मौलाना शमशाद सल्फ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी असली मंजिल की तैयारी के लिए ही अल्लाह के फ़ज़ल से गुजारी है और उन्होंने अपनी आखिरत की तैयारी की है। खूब अपनी आखिरत के लिए ज़ादेरा इकट्ठा किया है। दसियों नहीं, सैकड़ों लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और उसकी तौफीक से इनकी दावत के ज़रिए उनको अक़ीदा तौहीद की समझ मिली, सुन्नत की समझ मिली, उनको जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की राह पर चलने की समझ मिली और वो हज़ारों लोग इनकी दावत से मुतासिर होकर इस्लाम के सही रास्ते पर ये इनके लिए सफ़र जारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन लका मिन हुमूरिन नाम। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा था कि अल्लाह आपके ज़रिए एक बंदे को हिदायत दे दे तो आपके लिए सुबह ऊँटों से बेहतर है। तो सल्फ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ने इनके ज़रिए एक बंदे को नहीं, अल्लाह ने इनके ज़रिए सैकड़ों बंदों को हिदायत दी है और ये इनका आखिरत का बहुत बड़ा ज़ादेरा है इंशाअल्लाह रहमान। और इन्होंने अपनी पूरी उम्र जो तकरीबन
पौन सदी के लगभग मुहित है, पौन सदी इन्होंने अपनी उम्र की ये सारी की सारी इलाए कलिमातुल्लाह के लिए, किताब व सुन्नत की तरवीज के लिए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही पैगाम इंसानों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने सर्फ की है। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह इनकी आखिरत बहुत बेहतर कर देंगे इंशाअल्लाह रहमान। जो अल्लाह कोताहियाँ ज़िंदगी में होती हैं और ये छोटी मोटी कमियाँ कोताहियाँ परवरदिगार अपने बंदों की अपने फजल से उनकी इन आमाल और नेकियों की बिना पर मुआफ़ कर देते हैं। जी जज़ाकल्लाह। मोहतरम सल्फ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के सारी ज़िंदगी रफ़ीक़े सफ़र मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद जमील साहब कायद तहरीक दावत तो भाई रस्सियों से पीछे खड़े होंगे, ये भाई रस्सियों से पीछे खड़े होंगे, आगे नहीं भाई आएंगे इंशाल्लाह। ये जो रस्सियां लगाई गई हैं नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए, भगदड़ से बचने के लिए ये रस्सियां लगाई गई हैं। रस्सी छाड़ दो, रस्सी थोड़ा पीछे हो जाओ। इधर आप आ जा, तू काम कर रहे हैं। बस दो ही मारो, थोड़ी कर दो ना, ऊपर कर दो। जी 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 मैं आपको पूरा लिंक दे दूंगा ना इंशाल्लाह। दो बंदे भी खड़े आगे नहीं भाई, पीछे पीछे पीछे। बस यहीं से ये गली बनी हुई है भाई, यहीं से गुजरते जाएं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू पढ़ते जाएं भाई, गुजरते जाएं जी। नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए सब भाइयों को चेहरा दिखाया जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम भाइयों, राना साहब ने अपनी ज़िंदगी में वो 15-20 दिन पहले उलमा से राब्ते नाम साहब